So, according to BSc Geology Part 3 syllabus, there are two more topics that need to be covered under the carbohydrate section. It's there just in the syllabus. It is glycogenesis and glycogenolysis. मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so first of all, we will see glycogenesis. Okay. Glycogenesis means synthesis of glycogen. Oh, glycogen. Of ग्लाइकोजन, कंफ्यूज मत करना, सिमिलर टर्म लगेगा आपको. और ग्लाइकोजीनोलाइसिस मींस ग्लाइकोजन का लाइसिस, Breaking down. ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन. पहले हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ेंगे. ओके, सो ग्लाइकोजेनेसिस is the process of glycogen synthesis. It is the process of glycogen synthesis. Glycogen synthesis, in which glucose molecules are added to the chains of glycogen. इस प्रक्रिया के बारे में आपको समझाएंगे अभी कैसे होता है ग्लाइकोजन का सिंथेसिस. तो पहले शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ ग्लाइकोजन, इतना छोटा होता है उस समय ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल. ओनली 7 ग्लूकोज रेसिड्यूज आर एडेड फर्स्ट टू द specific amino acid called tyrosine present in the enzyme glycogenesis. And there are 2 tyrosines in both the, because this glycogenesis enzyme is homodimer, there are 2 tyrosine molecules, and to those tyrosine molecules 7 residues of glucose are added by alpha 1 single-headed arrow 4 bond लिंकेज में 7 अमाइनो एसिड ऐड होते हैं, अमाइनो एसिड बोलो ग्लूकोज ऐड होते हैं. उसके बाद डिफरेंट एंजाइम्स कम्स इनटू द एक्शन दैट ग्रोज दिस चेन, एंड वन ब्रांचिंग एंजाइम कम्स दैट creates the branches in this growing glycogen molecule. So how it is being done in the hepatocytes or the skeletal muscles, where the synthesis of glycogen is taking place actively, okay, during resting phase. So this, by this method, one second, आज कितना तारीख है? 15 okay, so is the कहाँ थे? तो इस प्रक्रिया में बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं. एक्सेस ग्लूकोज जो बच जाता है उसका हेपेटोसाइट्स में एंड स्केलेटल मसल्स में ग्लाइकोजन का के रूप में उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है ग्लूकोज को.
So I'll come to that. So glycogenesis is the process which is a built-in mechanism of the body, and it stores the excess carbohydrates that we consume, okay, in the form of glycogen. And this glycogen can be broken down to glucose whenever it is needed. Okay. Glycogen is present in the liver cells in such an amount that 8% of the weight of the liver in humans is because of this glycogen molecule alone. Okay. हाँ, बहुत लंबे समय तक जो लोग फास्टिंग करते हैं या बार बार फास्टिंग करते हैं, उनमें ग्लाइकोजन का लेवल डाउन हो जाता है. ओके. तो आप देख रहे हैं, अगर ये सवाल आया एग्जाम में तो क्या लिखोगे? ग्लाइकोजन इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस in which glucose molecules are added to chains of glycogen for storage. This process is activated during rest periods in the liver. And skeletal muscles. सवाल उठता है, ये होता कैसे है? The steps involved in this synthesis. Definition wise, is it clear to you, students? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So there are several steps involved in this glycogen synthesis. I will include one picture here. Students, can you see this clearly? Yes, sir. Is it visible? Yes, sir. See, इसमें जितने एंजाइम्स हैं उतने लगभग स्टेप्स हैं, वो आप काउंट कर लो. तो आप देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ पर जो रेड से लिखा हुआ है वो एंजाइम का नाम है, और जो ब्लू से लिखा हुआ है वह है सबस्ट्रेट और इंटरमीडिएट के नाम. तो हियर यू कैन सी द एंजाइम नंबर 1 ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज 4. जब ग्लाइकोलाइसिस आपको पढ़ाए थे तो वहां पर भी हेक्सोकाइनेज का जिक्र आया था, बट दिस हेक्सोकाइनेज इज डिफरेंट, ऑल्दो इट इज डूइंग द सेम रिएक्शन, मतलब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलना, बट दिस इज अ डिफरेंट एंजाइम. ठीक है, इसके लिए प्रीरिक्विसाइट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज डिफरेंट. तो अब the second enzyme is phosphoglucomutase. Third enzyme is UDP glucose phosphorylase.
Fourth enzyme is glycogenin. Fifth enzyme, glycogen synthase. Sixth, glycogen branching enzyme. अब देखिए क्या कैसे हो रहा है ये। फर्स्ट स्टेप वेरी सिंपल, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-phosphate by the action of glucokinase or hexokinase 4 enzyme. स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So in this process, what you are seeing here is glucose is getting activated by the phosphorylation. ग्लूकोज को एक्टिवेट किया गया, कार्बन नंबर 6 पर इसका एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ, बट एट द कॉस्ट ऑफ 1 ATP. ATP is converted into ADP. ADP. Same like the first process of step of glycolysis. Glycolysis. Yes, sir. Glucose 6-phosphate is now generated. The second intermediate, which is coming in this biosynthesis, this is an anabolic reaction. So anabolic reaction में एनर्जी खर्च होती है, यानी यह एक निर्माण की प्रक्रिया है, एनाबॉलिक रिएक्शन. ग्लाइकोलाइसिस पाथवे क्या था? कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी ब्रेक डाउन का प्रोसेस है, वो उसमें एनर्जी लिबरेट हो रही है ब्रेक डाउन में. और यह निर्माण का प्रोसेस है, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, इसमें एनर्जी खर्च हो. और ये दोनों तरह की रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म के हिस्से हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, जो कि सेल में हमेशा चलते रहते हैं. और इनके बीच का जो प्ले है, डांस है और जो बैलेंस है, उसकी वजह से ही यह लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं सेल के अंदर. तो आप देख रहे हैं ग्लूकोज 6-phosphate. द सेकेंड वन इज ग्लूकोज 1-phosphate. दिस इज जस्ट एन आइसोमेराइजेशन, मीन्स not isomerization, the transfer of phosphate group from the 6th carbon to the 1st carbon. So glucose 6-phosphate here is getting converted into glucose 1-phosphate by the action of enzyme phosphoglucomutase. This enzyme is doing this function. ये ribbon like structure जो आपको दिख रहा है, this is the 3D structure of the enzyme. ये जो enzyme का glucokinase का 3-dimensional structure है. Not required, बस not required. Phosphoglucomutase ग्लूकोज 6-phosphate को ग्लूकोज 1-phosphate में बदल दिया. और हालांकि अभी कहाँ जाएगा? अभी अभी खुल गया होगा काउंटर. टाइम देखो. फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज. फिर ग्लूकोज 1-phosphate is then converted into UDP glucose, यूरेसिल डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, UDP ग्लूकोज. यानी UTP यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट को यूटिलाइज किया यह एंजाइम UDP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज. इसने UTP को यूटिलाइज किया और पायरोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट जुड़े हुए उसको रिलीज किया. तो इसमें खपा क्या क्या? UDP खप गया. पायरोफॉस्फेट 2 फॉस्फेट अलग हुए. तो अब आप देखिए जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल है यूरेसिल डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, इसमें 2 फॉस्फेट हैं, ग्रुप है 1 and 2. ठीक है, लेकिन इनपुट कितना फॉस्फेट ग्रुप का हुआ? UTP के रूप में यहाँ 3 फॉस्फेट ग्रुप और एक ग्लूकोज 1-phosphate का अपना फॉस्फेट ग्रुप था. तो 3 1 4 फॉस्फेट ग्रुप इस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं. 3 इसके फॉस्फेट ग्रुप UTP के और एक ग्लूकोज 1-phosphate का फॉस्फेट ग्रुप. और जो प्रोडक्ट है उसमें 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं,
यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज यूरेसिल डाइफॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इसके राइबोज शुगर के 5th कार्बन से 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, एंड टू दैट फॉस्फेट ग्रुप जो ऑक्सीजन है उस लास्ट वाले फॉस्फेट हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो क्या था बीच में? Yes, sir. आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। ओके, कहाँ तक सुन थे? इस स्टेप को आई एम रिपीटिंग। यूरेसिल डाइफॉस्फेट, यस सर, यूडीपी। Okay, see, there is input of 4 phosphate groups here. Can you see here? Can you mark this? 3 phosphate group UTP में आया, ट्राइफॉस्फेट है 3 फॉस्फेट ग्रुप, और एक फॉस्फेट ग्रुप है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट प्लस यूटीपी in the presence of this UDP glucose pyrophosphate phosphorylase enzyme is giving rise to uracil diphosphate glucose. This is the product of this reaction. So what you are seeing here is 4 phosphate groups are entering the reaction, and in the resultant molecule there are only 2 phosphate groups. So pyrophosphate कहते हैं 2 phosphate groups are joined together by the energy rich bond phosphodiester bond. So one pyrophosphate group, 2 phosphate groups joined together, it is released in this reaction. Okay, so this reaction is also a energy consuming reaction. एक तरह से यहाँ पर भी यूटीपी में जितना एनर्जी, क्योंकि एक हाई एनर्जी रिच बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ, सो 1 यूटीपी इक्विवेलेंट टू 1 एटीपी, तो 1 एटीपी के बराबर यहाँ भी एनर्जी, 1 एटीपी यहाँ खपत हुई, 1 एटीपी यहाँ खपत हुई। द रिजल्टेंट मॉलिक्यूल इज यूरेसिल डाइफॉस्फेट। यहाँ आप देख सकते हैं राइबोज मॉलिक्यूल, यूरेसिल है आपका नाइट्रोजिनस बेस, एंड इट इज डाइफॉस्फेट, सो दिस इज नाइट्रोजिनस बेस हो गया ये यूरेसिल। ओके, एंड इट इज, और इसका न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपका राइबोज शुगर 5 कार्बन कंपाउंड के 5th कार्बन से यह फॉस्फेट ग्रुप 1 एंड फॉस्फेट ग्रुप 2 दोनों अटैच, और लास्ट वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विथ द कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज। यह ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा भिन्न लग रहा होगा आपको रिंग स्ट्रक्चर से, बट बेसिकली दिस इज अ रिंग स्ट्रक्चर ओनली। किसका माइक ऑन है? बंद करो। This is the chair conformation of a glucose molecule, and this is the stable most conformation. Glucose का ये closed ring structure ही है, but conformation is chair like. The aqueous solution glucose is in this form. तो UDP ग्लूकोज हो गया आपका, लास्ट वाला से ये जुड़ा हुआ है ग्लूकोज, लास्ट वाला फॉस्फेट। कार्बन नंबर 1 से यूरेसिल नाइट्रोजिनस बेस है, कार्बन नंबर 5 ऑफ द राइबोज से 2 फॉस्फेट ग्रुप है, लास्ट वाला फॉस्फेट ग्रुप के ऑक्सीजन से कार्बन नंबर 1 ऑफ दिस ग्लूकोज इज बॉन्डेड। सो दिस कंपाउंड इज नाउ जनरेटेड यूरेसिल डाइफॉस्फेट। अब यह यूरेसिल डाइफॉस्फेट इनकॉर्पोरेट होगा, यह मतलब प्रिकर्सर हो गया फॉर द ग्लाइकोजन सिंथेसिस। स्टूडेंट आ रहा समझ में यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Step number 3. Now coming to the step number 4, in which enzyme glycogenin is involved. Okay, so this enzyme, what it actually does is, this enzyme is needed, glycogenin, for the initial synthesis of glycogen chain. So initial synthesis of glycogen chains means short glycogen chains are getting synthesized on the tyrosine residues. This is a homodimer. अच्छे से देखोगे तो 2 अलग अलग डोमेन है इसमें,
इस होमोडाइमर में एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज है टायरोसिन नाम का, दोनों डोमेन में। एंड टू दिस टायरोसिन मॉलिक्यूल दिस यूडीपी ग्लूकोज इज एडेड। तो जब यह यूडीपी ग्लूकोज ऐड होता है टायरोसिन मॉलिक्यूल से, तो अब और यह एंजाइम भी खुद ही है, एंजाइम अपने ही टायरोसिन रेसिड्यूज पर इसको यूडीपी ग्लूकोज को ऐड करवाता है। तो इस एडिशन के दौरान, कंडेंसेशन के दौरान, यूडीपी लीव्स आउट एंड ग्लूकोज इज अटैच्ड टू द टायरोसिन थ्रू इट्स कार्बन नंबर 1, एनोमेरिक कार्बन नंबर 1, यानी रिड्यूसिंग एंड से यह टायरोसिन रेसिड्यूज में अटैच हो गया ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम ग्लाइकोजेनिन। फिर से बोल दे रहे हैं that enzyme glycogenin is needed to create initial short glycogen chains which are then lengthened and branched by other enzymes। पहले शॉर्ट सिंथेसिस हो गया, उसके बाद और भी एंजाइम आएंगे जो उसको और लंबा करेंगे, कुछ दूसरे एंजाइम्स जो उसको ब्रांचिंग करेंगे। ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम, इसका बहुत लंबा नाम है इसलिए इसको शॉर्ट में कॉमन में ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम कहते हैं। तो how they are doing it? First, glycogenin, which is basically a homodimer, has a tyrosine residues on each subunit that serves as the anchor for the reducing end of the glycogen. Okay, and initially about 7 UDP glucose molecules are added to each tyrosine residue by this enzyme glycogenin by forming alpha 1,4 bonds। अल्फा 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया ग्लूकोज के बीच में 7 रेसिड्यूज, ये एंजाइम। फिर जब यह 7 ग्लूकोज मोनोमर्स, 7 ग्लूकोज मोनोमर्स in a chain in each homodimer, it is formed, then glycogen synthase, 5th enzyme, comes into the action and it binds to the growing glycogen chain and adds more UDP glucose to the hydroxyl group of the glucosyl residue, but on the non-reducing end of the glycogen chain, therefore forming more alpha 1 to 4 bonds in the process। कहने का मतलब हुआ कि अभी तो 7 रेसिड्यूज इसमें ऐड हुए हैं, and I have told you branching point comes after 8 in glycogen, 8 to 12 नहीं 6 to 12 I think, 6 to 12 every 6 to 12 रेसिड्यूज। तो पहले तो 7 रेसिड्यू ऐड हुए, लेकिन शुरू में ब्रांचिंग उतनी नहीं होती है जब ग्लाइकोजन सिंथेसिस है। तो फर्दर मोर एंड मोर ग्लूकोज यूनिट्स आर एडेड बाय दिस एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेस इन विच अल्फा 1,4 बॉन्ड्स विल बी फॉर्म। बट ग्लाइकोजन में जहां ब्रांचिंग है वहां पर अल्फा 1 सिंगल हेडेड एरो 6 बॉन्ड्स आर देयर। सो दिस ब्रांचिंग बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द नेक्स्ट एंजाइम विच इज कॉल्ड glycogen branching enzyme। ओके, आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। branches are made by this glycogen branching enzyme which transfers the end of the chain। Yes sir। एंड ऑफ द चेन, अगर एक लीनियर चेन हो गया रिक्वायर्ड लेंथ का, अब ब्रांचिंग होनी है, इस एंड ऑफ द चेन को यह ट्रांसफर कर देता है ऑन टू ए अर्लियर पार्ट ऑफ द इस छोटे छोटे चेन्स बन रहे हैं तो उनके उन चेन पर इनको ट्रांसफर कर देता है और फिर अल्फा 1 to 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये अल्फा 1 to 6 बॉन्ड ये एंजाइम करता है, that which forms branches, and then this glycogen
branching enzyme further grow by addition of alpha 1 to 4 glycosidic units by the same enzyme. यानी ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम अल्फा 1 to 4 का भी सिंथेसिस करता है. So ग्लाइकोजन सिंथेज, ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम एंड ग्लाइकोजेनिन, ये 3 एंजाइम मिलके ग्लाइकोजन बड़े मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करते हैं. चौथा, पांचवा, छठा. और पहला, दूसरा, तीसरा एंजाइम जो है, ये 3 एंजाइम ये ग्लाइकोजन बनने के लिए जो प्रिकर्सर्स रिक्वायर्ड है उनका निर्माण कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I will jump to glycogenolysis. This is about glycogenesis. Glycogenolysis पता है आपको? It is the breakdown of glycogen. Okay, so breakdown of glycogen. Glycogenolysis. लक्ष्मी अपना म्यूट करो, बार बार तुम खोल दे रहे हो माइक. Yes, sir. Glycogenolysis. Glycogenolysis is the breakdown of glycogen. It is the breakdown of glycogen. यार म्यूट करो ना. Why creating disturbance? इतना बड़ा हो गया. Lakshmi, I will remove you if you don't mute your mic. You are creating the disturbance in the class. Whole recording will be spoiled if you don't listen. Glycogenolysis is the breakdown of glycogen to glucose 1-phosphate and glycogen. मतलब क्या हुआ? जब ग्लाइकोजन टूटेगा जिसमें बहुत सारे n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स हैं, अब इससे हम एक बाल्टी से अगर 1 चम्मच पानी निकाल लिए तो क्या बच गया? 1 बाल्टी पानी फिर बच गया. ओके, वही बात है. इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन to glucose 1-phosphate and glycogen. Glucose 1-phosphate, एक ग्लूकोज निकला एक्टिवेटेड फॉर्म में, प्लस ग्लाइकोजन N-1. So in this reaction, glycogen branches are catabolized by sequential removal of glucose monomers by the process called phosphorylasis. Okay. अब आप ये बताइए कि whether glycogenolysis is an anabolic reaction or catabolic reaction, metabolism. कैटाबॉलिक होगा सर. Catabolic. ग्लाइकोजेनोलिसिस.
ओके क्योंकि गुड, ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे। यस, कैटाबोलिक एंड ग्लाइकोजेनेसिस, एनाबोलिक। Anabolic. ओके, तो in this process the mechanism is, और इसको और अच्छे से लिख लो, ओवरऑल रिएक्शन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। आप क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट आया, ये बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर दो। So this is the overall reaction of this glycogen breakdown enzyme, glycogen breakdown mechanism. हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है क्या? हेलो, यस सर। यस सर। ओके ओके, Yes, sir. Yes. नेट इज नॉट आई थिंक, ठीक है, ओके। सो दी सी हियर द एंजाइम इन्वॉल्व, एक ही एंजाइम का नाम है, याद रख लो आराम से, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज एंजाइम। तो यहां पर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज क्लीविंग द बॉन्ड, which bond? The bond which is linking a terminal glucose residues in the glycogen. Glycogen में बहुत सारे ग्लूकोज रेसिड्यूज हैं, सपोज कोई ब्रांचिंग पॉइंट आया, ग्लूकोज रेसिड्यूज बहुत सारे हैं। मान लो ये टर्मिनल ग्लूकोज रेसिड्यू है, ये वाला, ठीक। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वह इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जो इसके इमीडिएट नेबर है उसके और टर्मिनल के बीच वाला बॉन्ड, बीच वाला दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इट विल ब्रेक, ठीक है। सो इट इज क्लीविंग द बॉन्ड लिंकिंग ए टर्मिनल ग्लूकोज to a glycogen branch. Okay, so terminal glucose and a terminal glucose residue to a glycogen branch. तो ये भी एक तरह से कहीं भी टर्मिनल ग्लूकोज रेसिड्यू होगा, जैसे ये टर्मिनल ग्लूकोज रेसिड्यू है, ये ग्लूकोज रेसिड्यू टर्मिनल, तो ये किसी ब्रांच के ही अंत में होंगे, ठीक है। तो यहां पर इसको ये ब्रेक करके, क्योंकि ये इस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी की आवश्यकता है, सो दिस फॉस्फेट विल गिव द एटीपी विल गिव द एनर्जी। तो यहां पर एनर्जी खर्च हो रहा है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को निकालने में, ओके। हाँ, भले ही यह क्या है आपका कैटाबोलिक प्रोसेस है, ठीक है, कैटाबोलिक प्रोसेस है, लेकिन इस स्टेप में एनर्जी खर्च हो रहा है। जैसे ग्लूकोज भी कैटाबोलिक प्रोसेस है, लेकिन एट द इनिशियल स्टेज प्रिपरेटरी फेज एटीपी खर्च हो रहे थे, ओके। यस सर। और आप 6 फॉस्फेट बनने में। हाँ, तो आप इसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ग्लाइकोलाइसिस से जोड़ दो अगर, तो ये पूरा सीक्वेंस बन जाता है। ग्लूकोज यहां से निकला तो एक एटीपी यहां भी खर्च हुआ, फिर ग्लाइकोलाइटिक साइकिल में एंटर हुआ, फिर वहां के दो स्टेप में एटीपी खर्च हुए, ओके। ऑल्दो दिस इज कैटाबोलिक process. Then what happens? Glucose 1 phosphate is converted into this glucose 1 phosphate is converted into glucose 1 phosphate, glucose 6 phosphate.
अब आप बताइए इस प्रोसेस में कौन सा एंजाइम लग रहा है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलने में। लास्ट वाले आप ग्लाइकोजेनेसिस में देखे थे, एंजाइम का नाम था फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज पहला एंजाइम, दूसरा एंजाइम। बस ये खत्म हो गया ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, क्योंकि अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फेट क्या है, ये डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट बन जाएगा, एंटर हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जनरेट हुआ, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1,6-20 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा आइसोमेराइजेशन के बाद, फिर फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट। तो इस तरह से यह ग्लाइकोलाइसिस में कंटिन्यू हो जाएगा।